TD News, please subscribe. అస్సలాముఅలైకుం అందరికీ నమస్కారం. మీరు చూస్తున్న టీడీ న్యూస్ కేఎన్ఆర్. ముస్లిం జేఏసీ ప్రెసిడెంట్ జనాబ్ షేక్ అబూ బకర్ ఖాలిద్ సాబ్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ముస్లిం జేఏసీ సమావేశాన్ని పికాక్ ప్రైడ్ మీటింగ్ హాల్లో నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి అధిక సంఖ్యలో ముస్లింలు పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథులుగా మంత్రివర్యులు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, మంత్రివర్యులు దుద్దిల్ల శ్రీధర్ బాబు గారు రావాల్సి ఉండగా వారి అత్యవసర పనుల నిమిత్తం రాలేకపోతున్నామని ఫోన్ ద్వారా, వాట్సాప్ కాల్ ద్వారా, వీడియో కాల్ ద్వారా ముస్లిం సమాజానికి క్షమించాలని కోరుకుంటూ వారి సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని తెలియజేశారు. ఈ సమావేశానికి గౌరవ మానకొండూరు ఎమ్మెల్యే కవంపల్లి సత్యనారాయణ గారు, సిటీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు కోమటిరెడ్డి నరేందర్ రెడ్డి గారు, కరీంనగర్ నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ పుర్మల్ల శ్రీనివాస్ గారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మేనేని రోహిత్ రావు గారు, కమరుద్దీన్ గారు, ఖాజాబాయి గారు, వహాబాయి గారు తదితర నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొనడం జరిగింది. అలాగే ముస్లిం జేఏసీ సభ్యులు, నాయకులు మాట్లాడుతూ ముస్లిం సమాజం అంతా ఏకతాటి మీదికి వచ్చి పోరాడినప్పుడే ముస్లిం సమాజానికి మేలు జరుగుతుందని, అందరూ ఏకం కావాలని చెప్పి పిలుపునిచ్చారు. ఈ సందర్భంగా గౌరవ ఎమ్మెల్యే మానకొండూర్ కవంపల్లి సత్యనారాయణ గారు మాట్లాడుతూ గౌరవ మంత్రులు ఈరోజు రావాల్సి ఉన్నప్పటికీ అత్యవసర పనుల నిమిత్తం రాలేకపోతున్నారని, నా ద్వారా ఈ విషయాన్ని తెలియజేయాలని, క్షమాపణ కోరాలని చెప్పి తెలియజేశారని వారు అన్నారు. ముస్లిం సమాజం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలను, పరిష్కార మార్గాలను చూపడానికి మేము ప్రయత్నిస్తామని చెప్పి వారు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో పలువురు వక్తలు మాట్లాడడం జరిగింది. అటు దృశ్యాలను ఇప్పుడు మనం చూద్దాం రండి. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. جتنے کم گھر ہیں وہاں اتنے زیادہ اختلاف، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلم ووٹوں کو باہر دیا جاتا ہے اپنے مفاد کے خاطر، اپنے فائدے کے خاطر، اپنے فائدے کے خاطر ووٹوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. پیسے لے کر ووٹ ڈالنا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف غیروں کا کام ہے، اپنے مسلمانوں کے اندر بھی ہزاروں مسلمان ایسے ہیں جو پیسے لے کر اپنے ووٹ کو ڈال دیتے ہیں. اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جو ووٹ ڈالنے کے لیے الیکشن کے دن وہ وہاں پر الیکشن کو اپنے ووٹ کے پاس آتے بھی نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا رپورٹ کے مطابق حیدرآباد کے پرانے شہر کے اندر جو ووٹنگ ہوتی ہے انتہائی کم، پوری ریاست میں سب سے کم اگر ووٹنگ ہوتی ہے پرانے شہر میں ہوتی ہے. مسلمانوں کی غفلت ہے، جمہوری حق کو استعمال نہیں کرتے. جمہوری حق کو استعمال کر کے حکمرانوں کو کرسیوں سے اتار کر منصف حکمرانوں کو کرسیوں پہ لانے کا وہ کام کر سکتے تھے، لیکن ان کو آج تک حالات کا اندازہ نہیں ہے. یہی وجہ تو ہے کہ ادھر فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. بچے دانے نے ہمیں دی تھی، وہ ایک جیسی تھی کہ مسلمان کا جسد واحد ایک جسم کی طرح ہے. جسم جس طریقے سے پیر میں آپ کے اگر کانٹا چبھ جائے پورا جسم تنمنا جاتا ہے، پورا جسم بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے مسلمان کو جسد واحد بن کر رہنے کی ضرورت ہے، جسد واحد بن کر رہنے کی ضرورت ہے. آئندہ آنے والا پارلیمنٹ کا جو الیکشن ہے، لوک سبھا کا جو الیکشن ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے. اس کے لیے ہم آج سے ہی تیاری شروع کر دیں کہ ووٹر انرولمنٹ ہونا چاہیے 100%. ہماری آبادی میں، ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں، ہماری مسجد کے ایریے میں کوئی گھر ایسا نہ ہو کہ جس کے پاس ووٹر آئی ڈی نہ ہو. ایسا ہوتا ہے عموماً جس دن الیکشن ہوتا ہے صبح ہم ووٹر آئی ڈی کارڈ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کارڈ ملتا نہیں. گھر میں پوچھتے ہیں بھئی یہیں رکھا تھا، ادھر رکھا ہوا تھا، ادھر رکھا ہوا تھا. کارڈ مل بھی جاتا ہے، وہاں جاتے ہیں تو لسٹ میں نام موجود نہیں ہے، رینڈملی اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. ہم اپنا ووٹ پہلے سے چیک نہیں کرتے کہ ہمارا نام لسٹ میں ہے یا ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. ہمارے وہ لوگ جو معزز لوگ سمجھے جاتے ہیں وہ لوگ ووٹ تو ڈالتے ہیں لیکن ان کی گھر والیاں، ان کی خواتین ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں چاہتی. صفوں میں ٹھہرنا اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے. میرے بھائیوں اس کو چھوڑنا پڑے گا. اگر آپ اپنے حق کے جمہوریت کو استعمال نہیں کریں گے تو ہمیشہ کے لیے پچھتانا پڑے گا. ذہن بنا لیجئے کہ ووٹر انرولمنٹ کریں گے اور وہاں آنے پر 100% ووٹنگ ہو اس کی کوشش کریں گے. اور فرقہ پرستوں کو ہرانے کے لیے، فرقہ پرستوں کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے منظم حکمت عملی ہم کو اپنانے کی ضرورت ہے. میں آئی تھی اس وقت CAA/NRC کا مسئلہ چل رہا تھا، پورے ملک کے اندر اس کے خلاف ریلیاں نکل رہی تھی، جن سے جلوس ہو رہے تھے، احتجاج درج کروایا جا رہا تھا. کریم نگر کی عوام کی نظریں یہاں کے لوگوں پر تھی. کیوں کریم نگر کے اندر بے حسی طاری ہے؟ کیوں کریم نگر کے اندر کوئی ریلی نہیں نکلتی ہے؟ اس وقت دانشورا نے، ملت نے سر جوڑ کر بیٹھ کر ایک تنظیم کو وجود بخشا جس کا نام تھا مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی. اور اس وقت کے ہمارے پہلے صدر تھے جناب اختر علی صاحب، مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. انہوں نے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر قوم کے لیے میدان میں ایسے نکل کر آئے کہ یہ CAA/NRC کی ریلی کے اندر باوجود یہ کہ ان کو کہہ دیا گیا تھا کسی بھی قسم کی شرانگیزی کی صورت میں براہ راست آپ کو نشانہ بنایا جائے گا. یہاں کے محکمے نے، یہاں کے انتظامیہ نے فون کر کے بتا دیا تھا
अगर एक भी पत्थर किसी जगह से आ जाए आपको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उस बाज़्म बाहिम्मत शख्स ने जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, चैलेंज को कबूल किया, कामयाब रैली निकली अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क की तारीख के अंदर जहां दूसरे शहरों ने अपना नाम दर्ज कराया, करीम नगर का भी नाम अल्हम्दुलिल्लाह CAA NRC के खिलाफ दर्ज हुआ है। फिर अमन हमारी रैली वहां पर निकली है। फिर उसके बाद चंद ही दिनों के बाद कोविड का मसला आ गया। लोग अपने अपने जानों की हिफाजत में, अपने अपने लाल की जानों की हिफाजत में लगे हुए थे, एक दूसरे को पूछने के लिए तैयार नहीं थे। बेटा बाप को छोड़ चुका था, माँ को छोड़ चुका था, मय्यतें दवाखानों में पड़ी हुई थी, गुस्ल देने वाले मौजूद नहीं थे। कहा जा रहा था ऐसे ही लपट कर दफन कर दो, गुस्ल की जरूरत नहीं है। उस वक्त मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के हमारे होनहार नौजवानों ने, वॉलंटियर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल दिया। कई मय्यतों को सरकारी दवाखाने से लेकर अपने हाथों से खित्ते सालिहीन में जहां पर वहां पर मकसला बना हुआ है, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज हुई, पूरे एजाज के साथ उनको दफन किया गया। उस वक्त की सूरत हाल ये थी, हमारे वॉलंटियर काम कर रहे थे, अईसा व अकारिब रिश्तेदार दूर से देख रहे हैं, करीब में आने के लिए भी तैयार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वॉलंटियर्स ने अपनी जान पर खेलकर मिल्लत के इस फरीज़े को निभाया है। और हमारे उन डॉक्टरों ने, मैं सलाम करता हूं उन डॉक्टरों को, तकरीबन 50 डॉक्टर, 50 जिनमें बात सरे फेरिस्त हैं, काबिल तारीफ हैं। घरों को जाकर उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, घरों पर जाकर उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए, घरों पर जाकर उन्होंने दवाएं दी, जिसकी कोई फीस उन्होंने हासिल नहीं की। मिल्लत के लिए उनकी ये कुर्बानी इंशाअल्लाह याद रखी जाएगी। अल्लाह ताला उन सबको खूब खूब जज़ाए खैर इनायत फरमाए। हमारा ये वो शहर है जहां जिम्मेदारान मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी करीमनगर व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफज़लीन अल अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, सदक़ रसूलुन नबीयुल अमीनुल मतीनुल करीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो इजलास एक तो तहनीयत थी उन कायदीन के लिए जिन्होंने कामयाबी हासिल की, और दूसरा ये था मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी का मकसद कि उनके सामने जो मुसलमानों के मसाइल है, जो मुसलमानों के लिए ज़रूरियात है, उसको रखना। और जैसा कि आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी देर से मुफ्ती साहब मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालिक बड़ी वजाहत के साथ बता रहे थे, और इसके खिदमात आप उनसे भी सुन रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते भी हैं कि मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी की क्या खिदमात है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ज्यादा वक्त लिए बगैर बस ये चंद कलिमात आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ। एक बार हम और आप मिलकर अकीदत के साथ रसूल कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर ताजदार अरब व अजम फ़ख्र ईसा व आदम सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमन्ना दर्द दिल की रख तू कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलती है दौलत बादशाहों के खजीनों में। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, बस अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ जितने भी हजरात हैं, फर्द वाहिद नहीं बल्कि सब अपनी अपनी जगह एक अंजुमन नजर आते हैं।
کسی نہ کسی معاملات سے جڑے ہوئے ہیں اور سماجی خدمات سے جڑے ہوئے ہیں اور سماج جن کی سنتا ہے اور الحمدللہ وہ بہترین نمائندگی کرنے والوں میں سے ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ اسی سے خدمت لیتا ہے، اس کے مخلوق کی خدمت کا موقع انہی کو دیتا ہے جن سے وہ محبت رکھتا ہے اور یقیناً آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مخلوق کی خدمت کے لیے چنا ہے۔ اور معزز حاضرین کرام، رہی بات جیسا کہ ہمارے ملک کے حالات، جیسا کہ آپ جب سے سماعت کر رہے تھے جو حالات ہو رہے ہیں ان حالات کو دیکھیں اور متحد ہو جائیں، اور جیسا کہ کہا گیا اتحاد زندگی ہے اختلاف موت ہے۔ اگر ہم متحد ہوں گے تو یقین مانیے یہ قوم مسلم ایسی قوم ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، جو جتنا دبانے کی کوشش کرے گا وہ اتنا ہی ابھرنے والی قوم ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا دین زندہ دین ہے اور زندہ جاوید لوگوں کا دین ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ بس یہی معاملہ ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھنا چاہیے اور متحد ہو کر اپنے مطالبات کو منوانا چاہیے۔ اور رہی بات کہ جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ مدث اللہ العالی جو ابھی جیل کے سلاخوں کے پیچھے، حالانکہ حضرت نے کچھ زیادہ نہیں کہا لیکن وہ ایک آواز بن کر ابھر رہے تھے، وہ قوم کے لیے ملت کے لیے ایک آواز بن کر ابھر رہے تھے۔ ان کی آواز ان لوگوں کو بحران کر رہی تھی، پریشان کر رہی تھی۔ اب وہ اتنے بحران ہو گئے، اتنے پریشان ہو گئے، اب دیکھ رہے ہیں کہ کس کو کدھر دبایا جائے، کس کو کدھر مٹایا جائے، اور لہذا وہ ساری کوششیں کر رہے ہیں کہ اس دین کو مٹانے کی۔ مٹ گئے مٹے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ معزز سامعین، یہ دین نہ مٹنے والا ہے، یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین متین ہے۔ تو معزز سامعین، ہمیں چاہیے، ہمت کی ضرورت چاہیے، ہمیں چاہیے ایک دوسرے کے تعلق سے جو ہم اختلاف جو رکھتے ہیں کینہ، اور میں آپ کو بتا دوں آج جو شب ہے شب برات، اور شب برات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بنی کلب عرب کا ایک بڑا قبیلہ، اور وہ قبیلے کے پاس بہت زیادہ، اور اس سے اور اب بکریوں کے بعد ایک بکری کے بعد کوئی گن ہی نہیں سکتے، تو اب بتائیے وہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سیاہکاروں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا۔ کون؟ جو شرک کرتے ہیں، اور دوسرا وہ لوگ جو اپنے بھائی کے دلوں میں کینہ رکھتے ہیں، کینہ رکھنے والوں کی مغفرت نہیں فرماتا، بغض رکھنے والوں کی مغفرت نہیں فرماتا۔ کسی کے تعلق سے آپ کے سینے میں کینہ ہے، فوری مٹائیے، آج وہ رات سے محروم ہو جاتا ہے، وہ مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری خوشخبری سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو توبہ کریں اور مغفرت طلب کریں اور امت مسلمہ کے حق میں دعا کریں۔ دعا کی قبولیت کی رات ہے، معافی تلافی کی رات ہے، توبہ کی رات ہے اور گناہوں کی بخشش کی رات ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ایکشن کمیٹی کے صدر محترم ابوبکر خالد صاحب اور نائب صدور اور ایگزیکٹو ممبر اور تمام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہم کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اگر اس سے ہم دور ہوتے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہی میں ڈوبتا ہوتا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ
कि अल्लाह ताला ने हमको उसके अपने पसंदीदा दीन में शुमार फरमाया। मोहतरम हज़रात, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, हिंदुस्तान का माहौल फिरकावाराना होते जा रहा है। तो ऐसे हालात में मुसलमानों को डर और खौफ मायूस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह, जैसे कि मैंने भी एक आयत पढ़ी थी जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि न डरो न गम करो, तुम ही कामयाब रहोगे बशर्ते कि तुम मोमिन हो। यहाँ पे शर्त यह है कि आप मुसलमान की हैसियत से जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह को मानकर उसके इस्तिकामत दिखाएंगे। रब्बुल अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अल्लाह को रब मानो और जम जाओ, हर मामले में अल्लाह के दीन पर जम जाओ तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरिश्तों से करता है और अल्लाह का वादा क़यामत तक के लिए। और फिर अल्लाह ताला अपनी चाल चलने में बहुत आगे है। मकर मुक़द्दर व खैरुल माकिरीन। अल्लाह ताला फरमाता है कि लोग चालें चलेंगे, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की चालें बहुत कुछ चलेंगे, लेकिन बेहतरीन चाल चलने वाला अल्लाह ताला है, उसकी चाल बड़ी कामयाब चाल है। और फिर हमको कुरान के अंदर इसकी मिसालें मिलती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को और आपके सहाबा को मिटाने के लिए फिरौन पूरी लश्कर के साथ पीछा किया और फिर समंदर के करीब पहुंच गए और कोई आगे रास्ता नहीं था। अल्लाह ताला ने कहा कि अपना आसा मारो, समंदर फट गया। यानी अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है, इंसान की बस में, उसकी सोच में भी नहीं आ सकता। इस पानी की ये खासियत होती है कि पानी में लकड़ी मारो फिर दोबारा जम जाती है, हमेशा सरफेस को क्रिएट करता है। लेकिन पानी फट गया, रास्ता बन गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा समंदर पार कर गए और फिर फिरौन पीछा करते हुए उसी रास्ते पर आया और बीच में अल्लाह ताला ने फिर पानी को मिला दिया, गर्क हो गया। यानी इतनी बड़ी ताकत लाओ लश्कर को मिटाने के लिए अल्लाह को कोई टाइम नहीं लगता। कुन फयकून, वो कहता है तो हो जाता है। ये मिसालें अल्लाह ताला कुरान में इसलिए दर्ज करता है कि मुसलमानों को डर और खौफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ी बेहतरीन चाल चलने वाला है, लेकिन उसके लिए वक्त लगता है और वो तुम्हारा आजमाइश से तुमको गुजारता है। और फिर कुरान के अंदर जो आखिरी पारे के अंदर हम बारहा पढ़ते हैं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ये क्यों बयान किया गया कि अब्राहा जो है, नजाशी का जो बादशाह था, उसने खाने काबा को ढाने के लिए हाथियों को लश्कर को लेकर आया और अरब के लोग तो हाथियों को देखे भी नहीं थे और वो लश्कर लेकर आया ताकि खाने काबा को ढा दे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने कैसा उनका मामला किया, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, उनको जलील करके रख दिया, खाए हुए उसके बराबर कर दिया। ये सब वाकयात इसलिए हैं कि अहले ईमान को हिम्मत बताए, ढारत बताए कि अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है, उसके अख्तियार में सब कुछ है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, आग ठंडी हो गई। आग की खासियत तो जलाने की है, लेकिन अल्लाह ताला के हाथ बंधे हुए नहीं है। वो जब चाहे अपनी दी हुई चीजों को उसका हल भी कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। तो ये है कि अल्लाह पर पक्का ईमान हो, जम जाए हम तो अल्लाह ताला हमारी मदद जरूर करता है। और एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है कि इन पहले दौरा वाले के साथ जाने का था, सब जगह तो शिविर साहब गए और वहाँ प्रोग्राम के बाद हम इधर करीमनगर हैदराबाद में डिप्टी मेयर GHM सिया कांग्रेस में शामिल होने वाला था, तो उसको पार्टी में ज्वाइन करवाने के लिए हम रुकना पड़ा। पीएम साहब का सूचना में तरीका और इधर बाबू जी भी आने का था, उन्हें परसों प्रियंका जी आ रहे तो वो चेवल्ला के अरेंजमेंट देखने के लिए गए। अब दोनों सुबह 10:30 बजे को निकलने का फैसला किया था, हम नहीं आए, हमको माफी चाहते हैं। और मगर एक बात मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं और आप सबको मैं ये बात कहना चाहता हूं, अभी जब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का रिव्यू भी हुआ तो मैं एज ए BC वेलफेयर मिनिस्टर मैं CM के साथ सबके साथ हम लोग भी वो मीटिंग में थे। और मैं आप लोग ये बताना चाहता हूँ, जो भी फैसला है और वो फैसला जो भी आपका
इश्यूज है उसको हम एड्रेस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि अभी रिसेंटली हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर के नाते रमजान का प्रिपरेशन मीटिंग भी हुआ था। पूरा एमएलए सबके जो भी हैदराबाद के सब लोग हैं, पूरे ऑफिसर हैं, वही कोटेड, वही जो प्रोसीडिंग्स पॉइंट्स है वही जिलाओं को भेजे हैं। पूरा जिला कलेक्टरों से भी बात कर रहे हैं। रमजान का जो आने वाला महीना है उसके लिए भी पूरा तरीके से इंतजाम, चाहे भी कुछ भी दिक्कत है मैं आप लोगों से मैं ये पूछता हूँ, जो भी है एक नोटेड पेपर में मुझे दीजिए, उस सब मसला मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। और इसके अलावा भी पहले से जब छात्र नेता स्टूडेंट लीडर से जब से हम लड़ते आ रहे, कांग्रेस का फिलॉसफी है, कांग्रेस फिलॉसफी माइनॉरिटी मुस्लिम वेलफेयर के लिए काम करेगा। और अभी आज की देश की हालत में सब आप लोगों का भी आने वाला लोकसभा में भी आपका रोल रहना चाहिए। मालूम है करीमनगर में कैसा हालत है, उसको बदलाने के लिए हम एक पार्टी डिस्कशन के बाद कैंडिडेट को लेके आ जाएंगे। और उससे पहले अभी 5 साल सरकार रहने के आप दोनों, मैं और श्रीधर बाबू जी और बाकी 6 एमएलए, 13 में 18 एमएलए हम लोग हैं। आप लोगों के लिए जो भी है 8 लोग, 13 एमएलए में 8 लोग रहने की वजह सरकार से जो भी चाहे आपका जो मसला है वो हम सॉल्व करने के लिए आपके साथ रहेंगे। मैं बहुत रियली सारी फील करता हूँ, क्योंकि आपका इस सिलसिले में हमको भी खुद को पर्सनली रहना चाहिए था, मगर अचानक कल रात में डिसाइड हुआ था। नहीं तो अदरवाइज श्रीधर बाबू जी मैं दोनों मिलकर आने वाला था, उसलिए आपसे माफी मांगता हूँ। और आने वाला दिन में आप जो भी एक्चुअली पिछला संडे फिक्स किया था, फिर बाद में आज तक मुझे ये संडे में मीटिंग ऐसा उसी दिन बोले थे, मगर बीच में हमको प्रोग्राम का कंफ्यूजन में थोड़ा बदल गए। जो भी हुआ कुछ भी हुआ, मैं आप सब लोग जितने भी यहाँ आए, मैं फिर एक बार आप लोगों से माफी करते हुए आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आने वाला दिन में आपका जो भी मसला है वो मुझे लिख के दीजिए। और आप आने के बाद जहाँ भी जाए, क्या सिलसिला से भी हो, वेमड़वाड़ा से भी हो, तुप्पदंडी से भी हो, मानकोंडूर भी हो, हुस्नाबाद, पेद्धपल्ली, यहाँ धर्मपुरी, यहाँ गोदावरकनी, मंथेरी, किधर से भी हो, सब लोगों को मैं एक बात सीधा आपको बताना चाहता हूँ। आने वाला दिन में आपके उनका कोई भी दिक्कत है, वो दिक्कतों को हम सॉल्व करने के लिए आपका साथ रहेंगे, आपका साथ देंगे। हम ये बात आप लोगों से कहते हुए फिर एक बार आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे मीटिंग करके आप लोग यूनाइटेड चेंज एक्शन कमेटी का जो नाम पे आने वाला दिन में बहुत सारे इश्यूज है, ऐसा एक नहीं है। मैं सब चीज को आपको मैं सॉल्व करने के लिए आपके साथ रहूंगा, ये बात मैं कहता हूँ। और कुछ भी है तो मैं आप लोग कुछ बोलना है तो भी बोलिए, मैं लाइन में रह के सुनूंगा, क्योंकि मैं आपकी एक्चुअली वहां आने का इच्छा था और डिसाइडेड भी था, मैं नहीं आ पाया, इसलिए मैं भी फील करूँ। और कोई कुछ बोलना है, कुछ पॉइंट्स मैं सुनने के लिए है तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप माइक में कुछ बोले। పొన్నం ప్రభాకర్ గారు ఫోన్లో ఈ మీటింగ్ లో మాట్లాడడం జరిగింది। लोग आए हुए थे, उनके मेमोरेंडम्स लेके अबू बकर खालिद बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी। तो यहाँ पे जो पूरे मंडल से जो लोग आए हुए हैं, वो लोग रिप्रेजेंटेटिव्स हम यहाँ जमा कर लेके हम आपके पास लेके आए थे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो है ना आप वो जो है ना वो उसको प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस करना और उनके प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करना। ये क्योंकि ये लोग काफी दूर से आए, पूरे करीमा डिस्ट्रिक्ट से आए, बल्कि हैदराबाद से भी चंद लोग आए, अपना ये प्रोग्राम है बोल के। और वो लोग जो है ना सुबह 11 बजे से यहाँ पर हमारे एक मीटिंग में है, तो वो लोग भी अपने अपने प्रॉब्लम्स ले लेके आए हुए हैं। यही उम्मीद से आए थे कि जो है ना श्रीधर बाबू साहब और आप दोनों रहेंगे और उनके प्रॉब्लम्स को आप लोगों के सामने रखेंगे और आप लोग उसको एड्रेस करके जो है ना सॉल्व करेंगे बोल के। तो काफी उम्मीदों से और काफी जो है ना एक आस लेके जो है ना हमारे यहाँ पे लोग जमा हुए सो है। खालिद भाई उन लोगों को भरोसा दीजिए, जो आप जो पेपर ले रहे वो हमें लिए बोल के बताइए, और आप हम बैठ के और थोड़े लोग अंदर उसको बिठा के जो जो काम करना है, जो हो सकता है इमीडिएटली उसको करेंगे, और थोड़ा टाइम लगेगा तो उसके लिए भी कार्रवाई शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है हम उस पेपर को ऐसे कुछ नेग्लेक्ट करेंगे। मैं आप लेना मैं लेना अलग नहीं है, आप ले लो और उसका पेपर सीधा मैं दोनों बैठ के सब दोनों को बिठा के अपन उसका पेपर वाइज इश्यू वाइज फैसला करेंगे।
ठीक ठीक है बोले समझ गए अच्छी बात है। मैं फिर एक बार माफी मांगता हूँ भाई साहब, मेरा खालिद भाई मेरे तरफ से सबको बोलो माफी करने के लिए। और मैं आते ही मैं आप पूरा पेपर कलेक्ट कर लेता हूँ और आपका जो भी जितना भी पेपर है वो उसको अपन मसलों को अपन बैठ के रिजॉल्व करेंगे। सबको नमस्कार भाई साहब, फिर एक बार कोई कुछ नहीं बोले। हमारा माफी को मान लिया ना, हमारा माफी दिल से बोल रहा हूँ। आज हमको मिस करने का नहीं था, मगर ऐसा हुआ, कभी कभी ऐसा होता है। आप व्हाट्सएप वीडियो पे आ सकते हैं, हाँ व्हाट्सएप कर, क्यों नहीं? व्हाट्सएप वीडियो पे behalf of Muslim Joint Action Committee would like to bring Medina Complex Anjuman Islamia Complex issues. Medina Complex and Anjuman Rajiv Chowk or Indira Chowk was established. Committee was formed and 50 shutters were constructed. Complex inaugurated on 8 April 1983 and given for rent on lease basis. In 2014, existing committee was dissolved and till date no new committee was formed. Due to this, no proper rent is collected from the complex. Huge rent of more than 8 crores is pending. Huge rent of more than 8 crores is pending. And further, the amount which was collected by the previous committee, which was in the amount of 60 lakhs and 57,000, which was kept in the committee's account, which was drawn by the CEO of Waqf Board and illegally drawn from the CEO of Board. So we humbly request the government of Telangana to take action immediately and appoint new committees for both the complexes and to restore the balance amount which was taken back by then CEO of Board, as the same amount belongs to Karimnagar Waqf, which has to be utilized for the education and welfare of poor and downtrodden people. District Collector Karimnagar during the period of Congress government के period में 2011 has allocated like 8.5 acres of land bearing survey number 439 in Chittagutta village of Kottapalli Mandal for the purpose of Eidgah for Muslims to perform Eid prayers, Ramadan and Bakrid. But till date, the allotted land has not been included in the Waqf Gazette for further development of Eidgah, such as construction of the boundary walls and etc. We humbly request the government of Telangana to take immediate action and do the needful. ये भी बहुत अहम मसला है। अब किसी वजह से नमाज तो हो रही है मगर ईदगाह हमारे अंडर में या वक्फ के कंट्रोल में नहीं है। तीसरी चीज, on behalf of Muslim Joint Committee, ये humbly the government of Telangana to establish minority study circle in every district with permanent infrastructure. It will benefit minority students to get awareness, trainings and coachings of various competitive examinations. Karimnagar, when it comes to Karimnagar, in 2011, the Congress government announced 1,000 square yards land for Minority Welfare Office and Minority Study Center, out of which 500 square yards land was allotted and the fund was sanctioned. At that time, the minister was Mr. Sridhar Babu, who has let the foundations down. But till date, the foundations down were laid on 8 November 2011. But currently, the new collected 60% of the collected building is completed. వీడియో కాల్లో పొన్నం ప్రభాకర్ గారు గౌరవ మంత్రివర్యులు మాట్లాడడం జరుగుతుంది. बोके दुनिया के बोके हारा गैलेक्सिया पूरे జనాబ్ అబూ బకర్ ఖాలిద్ సాబ్ గారు వారి ఫోన్ ద్వారా వీడియో కాల్లో గౌరవ మంత్రివర్యులు మాట్లాడుతున్న వీడియోను ప్రదర్శిస్తున్నటువంటి దృశ్యాన్ని మీరు చూస్తున్నారు. అనివార్య కారణాల వల్ల వారు ఈ మీటింగ్కు రాలేకపోతున్నారని ముస్లిం సోదరులంతా మమ్మల్ని క్షమించాలని చెప్పి వారు కోరారు. వారి సమస్యలను పరిష్కరిస్తానని వారు మాట ఇవ్వడం జరిగింది.
జనాబ్ షేక్ అబూ బకీర్ ఖాలిద్ సాబ్ గారు వారి ఫోన్ ద్వారా గౌరవ ప్రభాకర్ గారు మాట్లాడుతున్న దృశ్యాలను చూపిస్తున్నారు. आप लोग जो मेमोरेंडम्स लेके आए थे आज जॉइंट एक्शन कमेटी के तरफ से जो मीटिंग बुलाया गया, कांग्रेस के तरफ से जो भी हमारे मंत्री थे, हमारे एमएलएस को फैसिलिटेट करने के लिए इतना अच्छा ओकेशन को जो सदर साहब है हमारे अबू बकर खालिद साहब को पहले धन्यवाद करते हुए, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरे पर्सनली भी मंत्री अभी प्रभाकर ने बात करे, श्रीधर बाबू जी और हमारे तमाम एमएलए के तरफ से भी मैं भी माफी चाहता हूँ क्योंकि वो लोग नहीं आ पाए. इधर के अरेंजमेंट बहुत अच्छा दिखे और मैं भी बोलूंगा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम करे, और जो भी जैसे प्रभाकर अन्ना बोले पूरे मेमोरेंडम लेके उनको पहुंचाने का जिम्मेदारी अबू बकर साहब और हम सब मिलके लेंगे. ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे. सब लोग को शुक्रिया अदा करते हुए ये मौका देने के लिए धन्यवाद. ఏసీ అధ్యక్షులు జనాబ్ అబూ బకర్ ఖాలిద్ సాబ్ గారిని చూసి సన్మానం చేస్తున్నటువంటి సోదరులు पेपर वाले कागज एक्शन कमेटी మానకొండూరు గౌరవ ఎమ్మెల్యే జోగంపల్లి జోగంపల్లి సత్యనారాయణ గారు హాజరై వినతి పత్రాలను సేకరిస్తున్నటువంటి దృశ్యం. भाइयों को मेरा सलाम, और आप बैठिए पूरे अपने अपने जगह पर तशरीफ रखिए. थोड़ी देर में हमारे आने वाले दो भी मिनिस्टर्स है वो नया सकते क्योंकि अचानक हमारे एआईसीसी सदर साहब ने और केसी वेणुगोपाल साहब ने आने से इधर नया सकते जो भी है ये जॉइंट एक्शन कमेटी का अपनी एक अच्छा कन्वेंशन रख के आपका जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व करेंगे, मिनिस्टर के पास पहुंचाएंगे. हम भी एक अच्छा जॉइंट एक्शन कमेटी का कन्वेंशन भी करीमनगर में श्रीधर बाबू जी का और पुन्ना प्रभाकर जी के साथ दूसरे जो भी मिनिस्टर्स है उनके साथ में एक अच्छा कन्वेंशन करेंगे. माफ करना क्यों बोले तो अचानक ये आने से ये सोच भी नहीं सके. ये हम 10 सुबह में 10 बजे ये प्रोग्राम आया, इधर निकलने से पहले मेरे को उन लोगों ने भिजा दिए. मैं छोटा हूँ इसीलिए मैं आना पड़ा. इसीलिए क्यों बोले तो बड़े लोग आप भी लेट आए ना सब, आप भी बहुत लेट आए. क्यों बोले तो ये अनवांटेड प्रोग्राम, अनवांटेड थिंग्स हैव हैपेंड. सो आप कुछ भी मत समझिए. जरूर हम जो भी आपका शिकायत है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, डेफिनेटली कांग्रेस गवर्नमेंट में सब कुछ हम सॉल्व करेंगे. आप एक ही आने वाले दिनों में एमपी इलेक्शंस है, ये एक ही सोचिए
ये डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप बीच में चल रहा है इलेक्शंस, ये कभी भी खतरा हो सकता है। मोदी का पूरा चरित्र हिस्ट्री देखे तो उनका जो भी है कहां से आए, वो गुजरात में 201 में वो जो भी कच्छ में ये अर्थक्वेक आया था, वहां केशुभाई पटेल बोल के एक मुख्यमंत्री था। अब जब वो टाइम पे इनको मुख्यमंत्री बना दिए थे, मगर वो 202 में उनका इलेक्शन आया था, उन्होंने नहीं जीत सकते थे। कुछ ना कुछ करके मैं मुख्यमंत्री पद को कैसे भी हासिल करना बोल के उन्होंने सोच के, आपको मालूम है अहमदाबाद में गोधरा में क्या प्रॉब्लम्स हो गए। अपने मुस्लिम भाई यहाँ पूरे समझ रहे हैं, ये पूरे हिस्ट्री जो भी है इनका, उन्होंने कैसे करे, क्या करे अपने लिए। आज भी कितने लोग अगर वो ईसाई हो, सिख हो, मुस्लिम हो, एससी दलित भी हो, उनके पूरे ऊपर कैसे कैसे अटैक्स हो रहे, ये पूरे आप लोग सोचना बोल के आपसे मेरा गुजारिश है, विनती है। क्यों बोले तो खाली पीली जाके अब तो बैटल ये जो भी है ये कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर चल रहा है। कांग्रेस कभी भी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सोचते हैं, आप लोग सब लोग सोचना पड़ता है। क्यों बोले तो डेमोक्रेसी को इन्होंने मान डाल रहा, कैसे मान डाल रहे आप पूरा रोजाना अखबारों में देख रहे। इसीलिए मोदी साहब का पूरे भी अपने जितने भी मुसलमान भाइयां हैं उनको सब जनों को बोल के आने वाले दिनों में जो भी पार्लियामेंट में कांग्रेस को हुकूमत देना बोल के सबको मैं विनती करते हुए मैं ये क्लोज करने के लिए बोल रहा हूँ। जो भी मेरे को ये मौका दिए उनको सबको मेरे तरफ से प्रणाम करते हुए मैं क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू। प्रेसिडेंट मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी, मैं तमाम प्रेस मीडिया और जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं मुख्तलिफ अजलाओं से, ओल्ड करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के जितने अजलाओं से जो आए हुए हैं उन सबको जो है ना मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी। आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आप लोग जो है ना एक उम्मीद और एक जो है ना एक आस लेके आए थे यहाँ प्रोग्राम में कि अपने कुछ मसले हल होंगे बोल के, तो और आप लोग जो आए मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हम आइंदा फिर एक बार अच्छा प्रोग्राम करेंगे और फिर दोबारा जो है ना अपन कांग्रेस के जो कायदीन हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उन लोग को फिर एक बार अपन वक्त लेके एक जो है ना एक अच्छा सा प्रोग्राम करेंगे। तो आप लोग खुद को शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी करीमनगर। आज जनाब शेख अबू बकर खालिद सदर मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी की सदारत में आज जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया गया। यहाँ पिकॉक फ्राइड रेस्टोरेंट में जो है अल्हम्दुलिल्लाह 400 से ज़ायद 400 से 500 लोग जो है मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ आज के प्रोग्राम में अटेंड किए हैं। और से VIP, इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव जो है ना आज के प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं। और तमाम ने जो है अपने डिमांड्स को मेमोरेंडम की शक्ल में जो है मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी को दिया है। और इंशाल्लाह जो है ये डिमांड्स को हम सेक्रेटरीट के अंदर जो है जनाब श्रीधर बाबू मिनिस्टर और मिनिस्टर जो है पन्नम प्रभाकर साहब को जो है ना ये हम जो है मेमोरेंडम देंगे। और आज के हमारे इजलास के अंदर जो है मानकुंडी के MLA डॉक्टर पवनपल इस्तेनारा साहब भी जो है आज हाजिर हुए हैं। और जो है आप सबका हम जो है तमाम आप नामाइन का और तमाम जो है जो कुछ आज अटेंड किए हैं हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट एक्शन कमेटी शुरू से जो है लोगों के वेलफेयर के लिए बनी हुई है। आगे भी जो है मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी जो है आप सबके लिए काम करेगी। और फिर से हम सब आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मेले साहब की टट्टी बात बना पहुंची करें। हमको देख रहे थे। हाँ, हम मिनिस्टर साहब मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब हटके कोई नहीं, बैठो नीचे बैठ के। नहीं साहब वो भी आए तो लेट आए। గౌరవ ఎమ్మెల్యే కోవంపల్లి సత్యనారాయణ గారు సన్మానిస్తున్నటువంటి విషయం आवाज
ఖాజాబాయి గారు ఎమ్మెల్యే గారిని సన్మానించిన విషయాన్ని ఖాలిద్ సాబ్ గారిని సన్మానిస్తున్నటువంటి విషయం షాల్వాతో ముస్లిం సోదరులు జేఏసీ నాయకులు సిటీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు నరేందర్ రెడ్డి గారు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కావడం జరిగింది. షికాబీ కాలనీ ఫజల్ ముస్లిం సోదరులు వచ్చినారు. దయచేసి క్షమించాలి. మన మంత్రులిద్దరూ మజీద్ అనివార్య కారణాల వల్ల రాలేకపోయినారు. ఏదైతే సమస్యలు ఉన్నాయో ఈ మసీద్ సమస్యలు కానీ, కబ్రస్థాన్ సమస్యలు కానీ, 317 జీవో సమస్యలు కానీ, ఇతరేతర ఉర్దూ భాషను పెట్టాలని మీ అందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నా. మనస్ఫూర్తిగా మీరందరూ కూడా మమ్మల్ని క్షమించాలి. ఆలస్యమైంది వేరే కారణాల వల్ల. మేము మళ్ళీ ఒకసారి జాక్ ఆధ్వర్యంలో కన్వెన్షన్ పెడతాము. తప్పకుండా అది కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫునే 13 నియోజకవర్గాల నుంచి మిమ్మల్ని అందరూ కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దయచేసి మనస్ఫూర్తిగా మమ్మల్ని క్షమించాలని, మీరు వచ్చి మమ్మల్ని పూల పుష్పగుచ్చాలతో అదేవిధంగా శాలువాతో సన్మానించినందుకు మిమ్మల్ని అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తా ఉన్నా. థ్యాంక్ యూ. మా కాలన్ భాయ్ గాని, మా నవాబ్ భాయ్ గాని, అదే విధంగా కమాలుద్దీన్ కానీ చాలా మంది పాపం బాధ అనిపిస్తా ఉన్నది చూస్తా ఉంటే మేము నిరాశపరిచినాం. నిజంగా కూడా దే ఆర్ अनफिट बिकॉज वी कुडंट मेंटेन बिकॉज आपको मालूम है जरूरी काम था, इसीलिए वहाँ रहना पड़ा. इसीलिए आपको माफ करना बल्कि आप पूरे लोगों को मेरा विनती है. थैंक यू सो मच. आप आगे बोलिए. आपकी डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट ही है, आप भी बोलिए. अब काफी है, देर भी हुआ मगर फिर भी माफी चाह रहे हैं. पर सब माफ कर देंगे इंशाल्लाह. माफ कर दिया ना भाई, पूरा माफ कर दिया. थैंक यू. चला चलिए. అభినందిస్తున్న నరేందర్ రెడ్డి గారు సిటీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు, ముస్లిం జేఏసీ అధ్యక్షులు జనాబ్ అబూ బకర్ ఖాలిద్ గారు వారిని అభినందిస్తున్న సిటీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు కోమటిరెడ్డి నరేందర్ రెడ్డి గారు వారి సమస్యల పరిష్కారానికి చేస్తానని చెప్పి మాట ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కొత్తపల్లి మాజీ ఎంపీటీసీ, మాజీ ఉప సర్పంచ్ ఖాజాబాయి గారు, అమరుద్దీన్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ముస్లిం సోదరులు, జేఏసీ నాయకులు ఖాలిద్ గారిపై అభిమానాన్ని చూపిస్తున్నటువంటి విషయం, వారిని సన్మానిస్తున్నటువంటి విషయం చేస్తున్నారు. మనసున్న మానవత్వం కలిగిన నాయకునిపై కొండంత అభిమానం. రేకుర్తి సాలేహా నగర్
నాయకులు రహీం గారు, మాజిద్ గారు, తదితర నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు చాన్ గారు, తదితర నాయకులు పస్పంద కుల సంఘాల నాయకులు, ముస్లిం మైనార్టీ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీలో భాగంగా అందరూ ఏకమై ఏకతాటి మీదకి వచ్చినటువంటి దృశ్యం. और इसमें ये मेरे फोन से निकाल మీరు చూస్తున్నది టీడీ న్యూస్ కేఎన్ఆర్. ఇది మనందరి ఛానల్. ఈ ఛానల్ను అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ సహకారాన్ని మాకు అందించండి. మరిన్ని వార్తలు, వార్తా కథనాలను మీకు అందించడానికి మీ సబ్స్క్రైబే మాకు దోహదపడుతుంది. ఛానల్ అభివృద్ధికి కూడా మీ సబ్స్క్రైబే మాకు దోహదపడుతుంది. దయచేసి మాకు సహకరించండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీరు చూస్తున్న వీడియో కింద సబ్స్క్రైబ్ అని రాసిన దాన్ని ఒక్కసారి నొక్కండి. ఇదివరకు నొక్కని వాళ్ళు మాత్రమే. అందరికీ నమస్కారం. అస్సలాము అలైకుం. ధన్యవాదాలు.